Hello students, today we will start the second chapter of statistics, that is what collection of data. As we go through in the first chapter the importance of statistics in economics, as we know that in economics we came to know the economic facts, that is means there is the existence of the poverty in our country. It is the economic fact. So statistics investigate this problem. It do the investigation by collection of the information, then after it do organization, analysis, presentation, interpretation, and in the last reporting. And then after the government of India, by using its analytical work done by the statistics, government formulates the policies, economic policies to eradicate social economic problems. Government always use statistical tools to formulate economic policies. So every economical problem investigated by the statistics by only collection of the data. First of all, we have to collect the relevant data. The relevant data means the data must be related to the economic problem. As we studied that अगर हमारे देश में गरीबी है तो we have to collect the data related to the income of individuals. What is their occupation? Where do they live? What kind of the standard of living they are living? So the data must be related to the economical problem. After collection of the data, what kind the data looks? जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद डेटा कैसा दिखता है, यू कैन सी इनटू दिस टेबल. यहाँ पर दो कॉलम है x एंड y, और इन द x वी आर रिप्रेजेंटिंग द ईयर्स and in the y column we are representing the food production in million tons. In the year 1970-71 we were having 108 million tons of food grain production, और 2016-72 में 272 million tons. तो ये एक डेटा हमने कलेक्ट किया है रिगार्डिंग द फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री. इफ वी से दैट वी आर हैविंग लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड इन आवर कंट्री, so it may be the economical problem, and related to this we will collect the data related to the food grain production in our country in the different years. तो यहाँ पर एक डेटा का एग्जांपल आप देख सकते हैं. यहाँ पर दो कॉलम्स है x and y, x representing years and y is representing food grain production in million tons. सो स्टूडेंट्स, हमने जो टेबल पहले देखी थी उस टेबल के अंदर दो कॉलम थे x एंड y. x was representing year and y was representing food grain production, and x and y are termed as variable. Why they are called variable? Because the value of these are varying continuously. जो भी x और y की वैल्यू है वो चेंज हो रही है. These are varying continuously. That's why these are called variable. Let's see. x की जो फर्स्ट में वैल्यू थी वो 1970-71 था, y की वैल्यू 108 थी. उसके बाद x की वैल्यू चेंज हो जाती है 1978-79 और y की वैल्यू भी चेंज हो जाती है 132. इस तरीके से x की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती जा रही है, जो कि प्रेजेंट में 2016-17 हो गया है और y का वैल्यू 272 है. इट मीन्स देयर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इन द वैल्यूज, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वेरिएबल्स. और जो वेरिएबल की वैल्यूज होती है उसी को ही हम डेटा कहते हैं, और इसी डेटा को हमें कलेक्ट करना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड डेटा, and this data we have to collect for the investigation purpose. So now we are ready to collect the data. हमें पता चल गया कि to do the investigation we have to collect the data, and we also know about the types of the data. In the previous chapter we studied the data may be of two types, quantitative data and the qualitative data. The data which cannot be represented in numeric values, it is called qualitative data. Like
gender, blood group. These are the qualitative data. But the data which can be represented in the numeric values, it is what? Quantitative data, जैसे कि height, marks, temperature, food grain production. These are the quantitative data. Now the sources of the data, from where we will get this data, it is the important part of this chapter. And second, from the source, जो भी हमें source मिल जाता है कि हमें डेटा यहाँ से लेना है, तो उसकी भी methodology है, the methodology of collecting the data. So we will go through the two things into this chapter. Number first, sources of data, और second, method of collecting the data. So हम start करते हैं. Number first, sources of the data. Sources of the data, it means from where we will collect the data. It is the place, it is the point from where we do collect the data for our investigation, for our analytical work. So there are the two sources of the data. Number first, primary source, and second is the secondary source. So what is the meaning of the primary source? Actually, the data is we are going to collect for the first time. The data is not available ready-made. The data is we have to collect for the first time. It is what the primary source of the data. It is the first hand data, not second hand data. It is what the first hand data which we will collect by inquiring, by doing survey, by doing census. So the data will be collected by the investigator for the first time. It is called the primary data, and it is collected directly from the respondents. Respondents means the person who will respond to the question of the investigator. Secondary data are the data which are already collected by somebody, and we are using that data by having the permission. Otherwise we may collect this data from the internet, means published source. हम न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जो ऑलरेडी न्यूज़पेपर आते हैं उसके अंदर कई सारा इकोनॉमिकल डेटा अवेलेबल होता है. हम वो डेटा का यूज़ कर भी अपना कोई रिसर्च वर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को हम एनालाइज कर सकते हैं. द डेटा विच इज ऑलरेडी कलेक्टेड, इफ वी आर यूजिंग दैट डेटा, इट इज व्हाट द सेकेंडरी सोर्स ऑफ द डेटा. जैसे कि जनसंख्या गणना का काम भारत सरकार करती है, सेंसस जिसे बोलते हैं, और ये सारा डेटा वेबसाइट पर अवेलेबल है. अगर हमारे देश में किसी भी राज्य के जिले पर हम कोई भी स्टडी करना चाहते हैं तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक डेटा हम वहां से ले सकते हैं. सो इट मीन्स वी आर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा. लेकिन जब भारत सरकार खुद ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है फर्स्ट टाइम, तो ये उनके लिए कहलाता है प्राइमरी डेटा. नाउ दे हैव मेड द रिपोर्ट, नाउ वी कैन, इट मीन्स एनीबडी कैन यूज दैट डेटा. इट इज व्हाट द सेकेंडरी डेटा. फर्स्ट टाइम आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी डेटा. डेटा कलेक्ट कर आपने दूसरों को अवेलेबल करवा रहे हैं, नाउ इट विल बी कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी डेटा. सो वी विल try to understand the concept of primary data with the help of example. For example, if you want to know the popularity of any film star among the students of your class, so for that you will conduct a inquiry, you will conduct a survey. So what is the research problem? आपकी research problem है कि आप किसी भी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी पता करना चाहते हैं कि कौन सा फिल्म स्टार स्टूडेंट्स के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है. इट इज़ द रिसर्च प्रॉब्लम. अब आपको इसका पता लगाने के लिए सभी स्टूडेंट से, सभी रेस्पोंडेंट से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी. फॉर दैट यू मस्ट हैव सम इंस्ट्रूमेंट. आपके लिए उसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होना ज़रूरी, लाइक क्वेश्चनर, जो कि आप हर एक स्टूडेंट को देंगे, बाय विच यू विल कलेक्ट द डेटा. सो इट मीन्स टू इन्वेस्टिगेट द रिसर्च प्रॉब्लम यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, और कलेक्शन ऑफ द डेटा के लिए यू विल डू द सर्वे. जैसे ही आप वो सर्वे करते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, वो एक पेपर पर होती है. देन आफ्टर यू ऑर्गेनाइज ऑल दिस इंफॉर्मेशन. आप उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में फीड करते हैं. इट इज़ व्हाट द ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन. उसी इंफॉर्मेशन को आप प्रेजेंटेशन, मतलब कि चार्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. उस पर यदि कहीं पर मैथमेटिकल टूल का एप्लीकेशन करना हो, स्टेटिस्टिकल टूल का एप्लीकेशन करना हो,
मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो एनालिसिस वर्क करते हैं। जो भी उसके रिजल्ट्स आते हैं आप उसको इंटरप्रेट कर रिपोर्ट्स बनाते हैं और इस तरीके से वो रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाती है। यू कैम टू नो कि विच फिल्म स्टार इज पॉपुलर इन दिस स्टूडेंट्स, तो उसकी एक रैंकिंग भी आप बना सकते हैं। यू मेक अ कंप्लीट रिपोर्ट, इट इज व्हाट द प्राइमरी डेटा। अगर इस रिपोर्ट को कोई दूसरा पर्सन यूज करता है और इसके डेटा यूज करता है तो ये रिपोर्ट अब सेकेंडरी डेटा के रूप में मानी जाएगी। बट ये डेटा तो आपने कलेक्ट किया है, यू हैव कलेक्टेड ऑल दिस डेटा, सो ये डेटा आपके लिए तो प्राइमरी डेटा था और यही डेटा की रिपोर्ट आपने जो बनाई है और इसको कोई यूज कर रहा है, इट विल बी कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी डेटा। हम सेकेंडरी डेटा को भी एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ यू वांट टू नो द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन द लास्ट 10 years, हम ये पता करना चाहते हैं कि हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा है या फिर घटा है, हम सफिशिएंट फूड ग्रेन प्रोडक्शन का कर पा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। सो वी आर हैविंग सम क्यूरियोसिटी टू नो द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन आवर कंट्री, तो हम उससे रिलेटेड हम डेटा कलेक्ट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू कलेक्ट द डेटा related to the food grain production in our country, how will you collect? क्या आप हर एक किसान के पास जाएंगे कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना हुआ? No, you will not get the perfect data. ये काम ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट कर चुकी है। इंडियन गवर्नमेंट हैविंग द ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स में डेटा अवेलेबल है, मैगजीन्स में डेटा अवेलेबल है, न्यूज़पेपर में, वेबसाइट में, तो आप ये सोर्सेज से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया। जो डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड था हम उसका यूज कर रहे हैं, इट इज व्हाट द सेकेंडरी डेटा। उसी डेटा को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रिटेशन करना और एक रिपोर्ट बनाना, इट इज व्हाट द सेकेंडरी डेटा एनालिसिस। और वो रिपोर्ट अगर कोई फिर थर्ड पर्सन यूज करता है तो वो भी सेकेंडरी डेटा के फॉर्म में ही माना जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? सो इन द अर्लियर केस, इन द प्राइमरी डेटा, you have collected information for the first time from your classmates, from the students। वहाँ पर पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी क्योंकि आप अपनी क्लास के अंदर किसी भी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी पता करना चाह रहे थे, उसकी कोई रिपोर्ट पहले से कहीं बनी हुई नहीं थी। It was made first time by you, then it is called primary data analysis। But if you want to know the food grain production in our country, so it is the information, it is the data already collected by the government. Now you are getting access of that data from the government websites, reports, it is for the secondary data। So अभी तक एक सिचुएशन जरूर क्लियर है। To investigate economical problem, we have to collect data. It means we got the answer of the question, why do we collect the data? It means we have to collect the data to investigate the economical problem. Now the question arises, from where we collect the data? So we are having the primary source and the secondary source. Now the third thing is that how to collect the data. How do we collect the data? हम इस data को कैसे collect करें? सो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुछ इससे रिलेटेड और भी आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, एक मैन्युफैक्चरर है, कार मैन्युफैक्चरर है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि मुझे कौन सी कार बनानी है? फ्यूल एफिशिएंट कार बनानी है, पावर कार्स बनानी है, बड़ी गाड़ी बनानी है, फिर छोटी गाड़ी बनानी है, तो कैसे डिसाइड करेगा? ठीक उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना कैंडिडेट उतारना है कि इस बार किसको टिकट देना है, किसको एमएलए का चुनाव लड़वाना है, किसको एमपी बनाना है, तो कैसे पार्टी पता लगाती है कि पर्टिकुलर इस पर्सन को एमएलए का टिकट देना चाहिए और चुनाव लड़वाना चाहिए? सो ऑल दिस डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सर्वे। वो सर्वे करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव होते हैं तो एग्जिट पोल आते हैं। जो चुनाव के रिजल्ट्स आते हैं उससे पहले एग्जिट पोल आ जाते हैं और वो बताते हैं कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। तो उनको कैसे पता चलता है? दे डू द सर्वेस। वो इंडिविजुअल्स पर जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं। दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन थ्रू सम
क्वेश्चनर, उनके पास एक टूल होता है, एक फॉर्म होता है जिसमें वो इंफॉर्मेशन भरवाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा दे डू द एनालिसिस एंड देन आफ्टर दे इंटरप्रेट। सो हाउ डू वी कलेक्ट द डेटा? सो वी कलेक्ट द डेटा बाय मेकिंग द सर्वेस। हम सर्वे करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, 1 to 1 जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जिससे हमें सारा डेटा मिलता है। तो अब बात आती है कि व्हाट इज सर्वे। सर्वे मीन्स आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम द पब्लिक। सर्वे मीन्स आस्किंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द पब्लिक। इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ द कार दे वांट। दे वांट फ्यूल इफिशिएंट कार, इट मीन्स ज्यादा माइलेज दे, या फिर दे वांट पावर कार्स। दुबई के अंदर फ्यूल इफिशिएंट गाड़ियां नहीं बनती बिकॉज वहां पर फ्यूल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वांट पावर कार्स, पावर बाइक्स। सो एशियन मार्केट में, इंडिया के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ द कार्स वी वांट? तो वी वांट फ्यूल इफिशिएंट कार। नैनो इज एन एग्जांपल। तो हम लोगों में पूछते हैं इस तरीके से। कैंडिडेट्स के बारे में भी हम इसी तरीके से पूछते हैं कि भाई कौन सा कैंडिडेट आपके लोकल एरिया में ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी लॉयलिटी, वो कितना फेमस है यहाँ के लोगों में, कितना लोगों का उसने ट्रस्ट विन कर रखा है कैंडिडेट्स ने। तो उनके बेसिक फीचर्स के बारे में पता करते हैं, जैसे कार की प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस। उसी तरीके से कैंडिडेट से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी ऑनेस्टी, उसकी लॉयलिटी, इन सारे फैक्टर्स को हम एनालिसिस कर कर एक क्वेश्चनर बनाते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं, उस फॉर्म पे सारी चीज़ें डालते हैं और हर एक इंडिविजुअल को हम ये फॉर्म देते हैं जिससे भी हमें पता लगवाना है। वो इसको फिलअप करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके बाद हम आगे का काम स्टेटिस्टिक्स के अंदर कर पाते हैं। सो इट इज़ द वे ऑफ कंडक्टिंग सर्वे इन विच वी पुट ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, रिलेटेड टू द कैंडिडेट्स, and then after we do the collection of information from the every individuals. So the purpose of the survey is to collect the primary data. My dear students, ये जो सर्वे होता है ये प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा गवर्नमेंट ऑलरेडी कलेक्ट कर हमको दे देती है।